नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। 25 तारीख को हुनकेरी में साईं बाबा मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम। अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी लंबे समय से चली आ रही आरएसएस विचारधारा का विस्तार है, सिद्धरामैया। कर्नाटक विधानसभा में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय प्रमुख बनाने का विधेयक पारित। अमित शाह के बयान पर खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उन्होंने दलितों का अपमान किया। उत्तराखंड में कब से लागू होगा यूसीसी, सीएम लागू होगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया बड़ा अपडेट। चिराग पासवान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सत्ता में रहते हुए बाबा साहेब को सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। इस माह की 25 तारीख को हुनकेरी में साईं बाबा मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी सिद्धेश्वर श्री साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूराव गुदगे ने दी। वह आज कार्यक्रम के संबंध में शहर में स्थित पत्रिका भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे, डॉक्टर चन्नवीर शिवचर्या महास्वामी भाग ले रहे हैं। कैमरामैन पुराज का कवरेज। सिद्धेश्वर ಬಹಳ ಪುರಾತನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶಿವಾಲಯ ಇದೆ. ಅದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಗುಹೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ವಿಶೇಷ ಏನದ, ನಮ್ಮದು ನರಸಿಂಹ ಗಿರಣ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಂದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇರದ ಅದು ಶಿವಾಲಯ ಇದೆ. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನದ, ನಮಗಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಜನವಾಡದವರಿಂದ ಬಂದು ಜಮೀನಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತಂದರು. ಅದು 37 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಜಮೀನು ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ. ಅದು ಜಮೀನು ಇಂಥ ಜಮೀನಿತ್ತು, ಅದು ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯ ಜಮೀನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಂತ ರೆಡಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೇನದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಗೊಂಡು ಏನದ, ಆವಾಗ ನಮಗೂ ಇದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಂದ ನೀವು ಇಂದ ನಾಡಿದ್ದಿಂದ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಬಂದಾಗಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಏನದ ಮಂದಿರ ಏನದ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ. ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನದ ನಾವೇನದ ಸೇರಿ ಏನದ, ನಮ್ಮ ಬ್ರದರೆಲ್ಲ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾರ, ಮತ್ತೇನದ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನದ ರಿಟೈರ್ಡ್ AEE ಇದ್ದಾರ. ಅವರಿಂದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂದ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿರೋದ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಫೀಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೀಸ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನದ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿಂದ 2 ವೀಲರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 4 ವೀಲರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಏನದ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ भी ಅಷ್ಟೇ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು। और राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन समिति के रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। आज शहर के गेस्ट हाउस में समिति के सदस्य और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन किया गया। रमेश शेड़के की अध्यक्षता में समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबूराव अमृतप्पा, रमेश शंकर राव शेलके और प्रकाश बंगारे को उपाध्यक्ष चुना गया। मनिक राव हलप्पा डोले को सचिव के रूप में चुना गया है। लालप्पा मैत्रे और सुनील मित्रा को संयुक्त सचिव के रूप में चुना गया है। कोषाध्यक्ष शिवराज जुलांडे को चुना गया है। मधुकर और सुनील वाघमारे को सलाहकार के रूप में चुना गया है। मुगलप्पा सुंदाल, गौतम तारे, प्रजालिता गोडाबोले, जरेप्पा वर्मा, नागमान पल्ली, साधोजात लाधा, माधवराव जगड़े, एकम्बा को सदस्य के रूप में चुना गया है। सभी लोगों के सर्वसम्मति से यह नियुक्तियां की गई हैं। और आज सलीम पाशा की रिपोर्ट। ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ KP ನ್ಯೂಸ್ನ ಸಂಚಾಲಕರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ನವನಿರ್ವಾಚಿತ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳಿದೇನೆಂದರೆ, ಇವತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಒಂದು ಇದು ಭವನಕ್ಕೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾಡಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಈ ಭವನವನ್ನು
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಾಬುರಾವ್ ತಾರೆ, ಔರಾದ್ ರಹಿವಾಸಿ, ನೂತನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಔರಾದ್. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह पर बीआर अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी के लिए निशाना साधा और कहा कि यह संविधान के मुख्य निर्माता का अपमान है। उन्होंने कहा कि संसद में शाह की टिप्पणी लंबे समय से चली आ रही है, आरएसएस विचारधारा का विस्तार मात्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अम्बेडकर के योगदान के बिना शाह गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। मुख्यमंत्री राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए शाह की टिप्पणी का जिक्र कर रहे थे। अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अम्बेडकर अम्बेडकर कहना एक फैशन बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके सिद्धरामैया लिए अम्बेडकर कोई फैशन नहीं बल्कि शाश्वत प्रेरणा है। कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 मंगलवार को जेडीएस और भाजपा सदस्यों के विरोध के बीच विधानसभा में पारित हो गया, जिन्होंने यह कहते हुए बहिर्गमन किया कि यह राजनीति से प्रेरित है और राज्य के राज्यपाल, जो राज्य के विश्वविद्यालयों के कुल अधिपति हैं, के खिलाफ नफरत की राजनीति को उजागर करता है। कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 को बेलगावी विधानसभा में पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में विकास में सुधार लाने के लिए कुछ बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं और राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाने का प्रस्ताव किया गया। यह विधेयक गदग स्थित विश्वविद्यालय को राज्य का पहला विश्वविद्यालय बनाता है, जहां कुलाधिपति राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री होंगे। आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खरगे ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 में मामूली बदलाव लाना है, जिसे कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2024 के रूप में जाना जाएगा। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के अनुसार 26 सितंबर को बेलगावी में होने वाली कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी के सदस्यों सहित कांग्रेस के अधिकांश शीर्ष नेता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि यह बैठक 1924 में बेलगावी में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के शताब्दी वर्ष के दौरान मनाए जा रहे गांधी भारत कार्यक्रम का हिस्सा है। बेलगावी में एक संवाददाता सम्मेलन में गांधी भारत कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शिव कुमार ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के एक दिन बाद 27 सितंबर को एक विशाल सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बेलगावी के सीपीईडी मैदान में देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का विशाल जमावड़ा होगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟೆನ ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला और कहा कि यदि किसी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ कुछ कहा तो प्रधानमंत्री को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा, ये लोग संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी की चुप्पी इस बात का संकेत है कि वे अमित शाह के बयान से सहमत हैं। उन्होंने कहा, अगर प्रधानमंत्री मोदी को बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान है तो उन्हें आज ही अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऐलान किया कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड UIIDB की बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार यूसीसी को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और जनवरी 2025 से इसे राज्य भर में लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे को पूरा किया जा रहा है। मार्च 2022 में जब राज्य में नई सरकार बनी थी तो पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए भाषण के खिलाफ विपक्ष द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले पर अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बयान दिया है कि चिराग पासवान ने कहा, कांग्रेस आज बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर के रहते हुए उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। दशकों तक उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में लगाना कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझा। बाबा साहेब के सम्मान में भारत रत्न देना भी उन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। आज कांग्रेस केवल एक प्रतिस्पर्धा में है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की एनडीए सरकार ने भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़े कुछ प्रमुख पलों को विकसित कर उन्हें चिन्हित करने का काम किया है। चिराग पासवान ने आगे कहा, जब तक कांग्रेस सत्ता में रही उन्होंने बाबा साहेब का नाम लेना तो दूर की बात है, उनके भुलाने का काम किया है। आज उसी कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब के सम्मान की चिंता हो रही है। कांग्रेस केवल दिखावा कर रही है। चिराग पासवान ने इस दौरान कहा कि संविधान पर कल राज्यसभा में हो रही चर्चा के दौरान मैं भी वही था। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन किया। चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस आज जिस तरीके से बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है, ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहेब की जीते जी उनको सम्मान देना उचित नहीं समझा। राजधानी दिल्ली में हुए दंगों में साजिश के आरोप में जेल में बंद आरोपी उमर खालिद को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। जानकारी के मुताबिक उमर खालिद ने अपने मौसेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। हालांकि कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक 7 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी। उमर खालिद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU का पूर्व छात्र हैं। उमर खालिद पर फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में कथित तौर पर मास्टरमाइंड होने के आरोप। बता दें कि दिल्ली में 2020 में नागरिकता संशोधन कानून CAA और राष्ट्रीय नागरिक पंजी NRC के विरोध के दौरान दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी ओर से अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली वासियों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया।
केजरीवाल की ये संजीवनी योजना है, जो कि इस योजना के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, इस योजना का फायदा कैसे ले पाएंगे, आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ऐलान किया है कि आगामी चुनाव में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर संजीवनी योजना शुरू की जाएगी। चुनाव के बाद इस योजना को शुरू किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि संजीवनी योजना के तहत दिल्ली में 60 और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में अनलिमिटेड मुफ्त इलाज किया जाएगा। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल सीरिया के बफर जोन से निकट भविष्य में भी अपना कब्जा नहीं हटाएगा और इजरायली सेना वहां आगे की भी डटी रहेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना सीरिया सीमा पर बफर जोन में और विशेष रूप से माउंट हार्मोन की चोटी पर तब तक मौजूद रहेगी जब तक कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती। नेतन्याहू ने कहा है कि वह 53 वर्ष पहले एक सैनिक के रूप में माउंट हार्मोन की चोटी पर वह खुद भी गए थे, लेकिन हाल ही में घटनाओं को देखते हुए इजरायल की सुरक्षा के लिए इस चोटी का महत्व और बढ़ गया है। इसीलिए इजरायली सैनिक वहां बफर जोन में अपना कब्जा जमाए रखेंगे। पहली बार इजरायल के प्रधानमंत्री ने सीरिया क्षेत्र में प्रवेश किया। सीरियाई के राष्ट्रपति बशर अल असद को विद्रोहियों द्वारा अपदस्थ किए जाने के कुछ दिनों बाद इजरायल ने बफर जोन गोलान हाइट्स की सीमा से लगे दक्षिण सीरिया के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। रूस ने तालिबानियों के पक्ष में बड़ा कदम उठाया है। पहली बार रूस की संसद के निचले सदन ने मंगलवार को एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दे दी जो मॉस्को के लिए अफगानिस्तान में तालिबान को आतंकवादी समूह की सूची में हटाने की मार्ग प्रशस्त करेगा। रूस का रुख पहले भी अफगानिस्तान में तालिबानियों के शासन के प्रति सबसे नरम रहा। अब रूस के इस कदम से तालिबानियों और ताकत मिलेगी। बता दें कि रूसी सांसद ने निचले सदन ड्यूमा द्वारा पारित विधेयक के तहत किसी संगठन का आतंकवादी समूह का आधिकारिक दर्जा न्यायालय द्वारा निलंबित किया जा सकता है। इस विधेयक को कानून बनने के लिए अभी ऊपरी सदन से मंजूरी मिलना तथा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हस्ताक्षर होना बाकी है। तालिबान को 2003 में रूस की आतंकवादी संगठनों की सूची में डाल दिया गया था तथा ऐसे समूहों के साथ कोई भी संपर्क रूसी कानून के तहत दंडनीय है। हालांकि तालिबान के प्रतिनिधिमंडल ने मॉस्को द्वारा आयोजित विभिन्न मंचों पर भाग लिया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। 25 तारीख को हुनकेरी में साईं बाबा मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम। अम्बेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी लंबे समय से चली आ रही आरएसएस विचारधारा का विस्तार है, धर्म। कर्नाटक विधानसभा में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय प्रमुख बनाने का विधेयक पारित। अमित शाह के बयान पर खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उन्होंने दलितों का अपमान किया। उत्तराखंड में कब से लागू होगा यूसीसी, सीएम लागू होगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया बड़ा अपडेट। चिराग पासवान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सत्ता में रहते हुए बाबा साहेब को सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।